Hello, students, welcome. I'm Jyoti Rajput, and today we will study a new chapter that is mitochondria and peroxisomes. So, in this video, we will complete only mitochondria organelle. So, in this chapter, these are the topics which we are going to study. So, here we will start with the introduction. So, the cell, it is the one which is a structural and functional unit of living organism. सो जो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दैट इज कॉल्ड एज सेल और सेल ही है जो कि ऑल द लाइफ प्रोसेसेस देखने मिलती है सेल में एंड इट इज वेरी असेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म सो जो भी सेल है the cell it is able to survive because of the physiological activities और जो भी physiological activities सेल के अंदर देखने मिलती हैं उसी के लिए एनर्जी की जरूरत है. So there is an organelle that is mitochondria. Okay. So which have a kind of a lipoprotein framework जिसमें बहुत सारे enzymes हैं और उन्हीं के द्वारा ही mitochondria is able to produce the energy. So mitochondria, it is the one organelle which is involved in cellular respiration. Cellular respiration का मतलब है first of all mitochondria it is present inside the cell and mitochondria it requires oxygen then only mitochondria will able to produce the energy. So this is how mitochondria requires oxygen and here mitochondria is able to produce the energy. So first we will talk about the mitochondria in this video. So the word mitochondrion, here it is a Greek word. Mito means thread and chondrion means granule. Here, when we see a mitochondria, it is a membrane enclosed filament shaped or granular organelle which is found in most of the eukaryotic cell. First, when we talk about the name, mitochondria was first observed by the Kolliker in 1815 जो कि उन्हें एक striated muscles में देखने मिला. Striated muscles जो हैं they are always present on the bone. Here, next came the scientist that is the Richard Altman. He developed steam useful for mitochondria and he named accordingly that is bioblast. And then the scientist came that is Benda in 1897 who was the one who gave actually the name that is mitochondria. एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल क्योंकि वो ही एक ऑर्गेनल है जो कि एटीपी बना सकता है दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट and you can say ATP it is a chemical energy. So in addition supplying the cellular energy mitochondria सिर्फ और सिर्फ ATP generation में ही involved नहीं है. Mitochondria जो है it is always involved in the signaling, cellular differentiation, cell death as well as the control of the cell cycle and cell growth. These are also the function of mitochondria. So mitochondria, when we observe them, they are always in a state of motion inside the cell. So you can see they are doing a kind of a cytoplasmic streaming. And whenever the cell is dividing, here जहाँ पर भी spindle fibers present होते हैं वहाँ पर सारे mitochondria जो हैं aggregate हो जाते हैं. एंड कोई भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है डिपेंड करेगा कि जो सेल है उसकी एज क्या है, सेल की एक्टिविटी क्या है. सेल की एक्टिविटी ज्यादा है तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, सेल की एक्टिविटी अगर कम है तो कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. एंड द माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सेल ऑल्सो. Here, when we talk about algal chlamydomonas, it has a single large mitochondria. Plant cell उनके पास जो है कम नंबर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के व्हेन वी कंपेयर्ड विद द एनिमल सेल हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया. सो वैसे देखा जाए एनिमल सेल में कम माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लांट सेल में जो जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं एनिमल सेल में जो है ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लांट सेल में जो है कम माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि प्लांट सेल के पास ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट है जो भी एटीपी का फॉर्मेशन करता है. सो द प्लांट सेल दे आर हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो and they are having chloroplast also to produce the ATP. Here, when we talk about the structure of the mitochondria size is going to vary from about 0.5 to 2 micrometer. And here, they are not distinctly visible under the light microscope. कभी कभी इनकी जो लेंथ है वो रीच करेगी अप टू 7 माइक्रोमीटर ऑल्सो.
फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स नजर आएंगे. कोई कोई माइटोकॉन्ड्रिया है जो ग्रैन्युलर शेप का होगा, कोई कोई फिलामेंशियस. सो डिपेंडिंग अपॉन के सेल का फंक्शन क्या है, ऑन दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे कि here there are the mitochondria spherical shape in the yeast cell. There are mitochondria shape is going to be elliptical in the kidney cells. There are elongated in liver cells. They are kind of filament shape in the fibroblast cell. और कोई कोई mitochondria का shape ऐसा नजर आएगा here in one end region it there is going to be club shape. और इस तरीके से जो है here it always it also gives a club shape like appearance. Here in mitochondria, we are going to study about the membrane, cristae, F1 particles, and the matrix. So here in detail, we will talk about all these components, which are all these parts which is present in the mitochondria in detail. So first we'll talk about the membrane. Mitochondria के पास जो है दो membrane present हैं. So these are the two highly specialized membrane. बाहर की जो layer होती है this is called outer membrane और अंदर की जो layer होगी this is called as inner membrane. So ये जो ईच एंड एवरी मेम्ब्रेन है ये दोनों के दोनों मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही होती है. एंड दिस मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दे आर हैविंग अ थिकनेस ऑफ अबाउट 60 to 70 एंगस्ट्रॉम. और ये दोनों के दोनों मेम्ब्रेन जो है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड हियर इट इज गोइंग टू बी अबाउट 40 to 80 एंगस्ट्रॉम वाइड. Here this is the space between the outer and inner mitochondria membrane. Here, when we talk about this membrane, the outer membrane and inner membrane, it is filled with a fluid. Or in fluid में जो है, there are certain number of enzymes which are poorly made up of proteins. Here you can see the mitochondria outer membrane and this is the mitochondria inner membrane. जब हम outer membrane की बात करते हैं mitochondria की, here it is made up of phospholipid bilayer. You can see the phospholipid bilayer और इनमें जो है कुछ porins नजर आएंगे. Here you can see these are some of the porins. Porins mean like a porous like structure नजर आता है. एंड ये जो पोरेंस है जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है दे आर द वन विच हेल्प्स टू मूव द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. सो कम से कम जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 10 किलो डेल्टन्स या उससे कम होने ही चाहिए तभी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जा सकते हैं. सो हियर द आउटर मेम्ब्रेन हेल्प टू ट्रांसफर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस लाइक न्यूट्रिएंट्स लाइक एटीपी एंड एडीपी. दे आर easily get transferred from the cytoplasm into the mitochondria. This space region intermembranous space region. Here जब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन में कोई पोरेंस नहीं होते. दे आर ओनली able to transfer, they are permeable for only selected molecules. इसीलिए वो एक बैरियर के जैसे काम करते हैं. लेकिन there is movement of molecules like the oxygen, carbon dioxide and water. It is easily transferred from this inner membrane and they can come into the mitochondrial matrix. When we talk about the inner membrane, ये जो inner membrane है this is the one which is dividing the mitochondria into two compartment. ये होता है intermembrane space और अंदर का होगा mitochondrial matrix. So you can see कि जो inner membrane है mitochondria की वो दो compartment form करती है. This is the intermembrane space और this is the matrix of the mitochondria. So दो important components का formation होता है. Now we will talk about the cristae. Here you can see the inner membrane of mitochondria. It is folded inwardsly. So these are called as cristae. सो क्रिस्टी जो है इतनी ज्यादा फोल्डिंग होने की वजह से ज्यादा सरफेस एरिया नजर आएगा इनर मेम्ब्रेन में. और ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो हैं अटैच्ड हो पाएंगे विच आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विच इज इन्वॉल्व इन द एटीपी सिंथेसिस. So here you can see the inner membrane of mitochondria, these cristae, they are providing more surface area so that more and more electron transport proteins can be attached and which will be involved in the ATP synthesis. So इस तरीके से ज्यादा ATP का फॉर्मेशन होगा अगर ज्यादा क्रिस्टी प्रेजेंट होंगी. So इस तरीके से जो है ऐसे सेल्स जिसमें ज्यादा एनर्जी they are involved actively in energy production, it is because of the more inner foldings of cristae and presence of more proteins which are involved in electron transport chain. Here when we talk about the cristae, ये जो cristae है
Here it is inversely folded. Christie जो है, it allows here numerous numbers of proteins so that here the more and more ATP formation को takes place. Christie जो है बाकी proteins को भी help करता है so that they can attach. So here you can see these proteins, they are involved in transport of the protons. So here the Christie also provide numerous localized region, the intracrystal space, where protons can accumulate between the folded inner membrane during the electron transport process. So ये जो क्रिस्टी है, as we know it is inwardly folded. So क्रिस्टी के बीच में भी कुछ gaps होते हैं. Here these are the gaps जहां पर number of protons accumulated होते हुए नजर आएंगे, और आगे जाके यही protons जो हैं ये क्या करेंगे, ATP का formation करेंगे. So here intercrystal space आप बोल सकते हैं यहाँ पर इसको, क्योंकि क्रिस्टीज के बीच में प्रेजेंट है. सो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे जाके एटीपी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे. So here you can see how the protons they are present in the intercrystal space. क्रिस्टी के बीच में जो भी स्पेस है वहां पर प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और यहाँ पर हियर एज द प्रोटॉन्स दे गेट अक्यूमुलेटेड, they are going to get transferred from this ATP synthetase, and here the ATP formation is going to takes place. सो बात ये है कि जो हाइड्रोजन आयन से दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द इंटरक्रिस्टल स्पेस. इंटरक्रिस्टल स्पेस का मतलब है, जब भी हम बात करते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. सो ये क्रिस्टी है, यहाँ पर एक क्रिस्टी है, ये दूसरी क्रिस्टी है. सो क्रिस्टी के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हियर द हाइड्रोजन आयंस दे आर गोइंग टू बी accumulated and they are involved in ATP synthesis. Here we will talk about some of the subunits. Here this is the mitochondria outer membrane and this is the mitochondria inner membrane. यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में भी आपको कुछ सब यूनिट्स नजर आएंगे. दीज आर कॉल्ड एज सब यूनिट्स ऑफ पार्सन. और हियर यू कैन सी दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पर भी कुछ अटैच होते हैं सब यूनिट्स, दोज आर कॉल्ड एज सब यूनिट्स ऑफ पार्सन. And here this is the mitochondria inner membrane. So inner membrane में inside की तरफ आपको कुछ subunits नजर आएंगे. These are called as subunits of Fernandez Moran. They are always involved in hydrogen transfer, जो हमने अभी अभी देखा. Now we will talk about the F1 particles, or you can say the oxysomes. माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ ये कुछ F1 पार्टिकल्स हैं which are attached on the crystal. So ये जो F1 particles हैं इनके काफी सारे नाम हैं. We call them elementary particles, we call them oxysomes also. Here these structures they are differentiated into three parts. पहला आता है head piece, फिर आता है that is stalk, and third is the base. These are the one which are also called as oxysome, और इनको ही हम एटीपेज के नाम से भी जानते हैं, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, which are always involved in the ATP formation. Here जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व हैं. सो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि ये साइटोक्रोम है, दिस इज इलेक्ट्रॉन कैरियर. और यहाँ पर हम देख लेते हैं दीज आर द फ्लावोप्रोटीन्स, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम आते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है. सो जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फ्लोइंग वाटर. जब हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर एंड देन एनर्जी इज प्रोड्यूस. यहाँ पर भी कंडीशन सेम ही है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ पर पानी का फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा बाय दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और उसी के वजह से ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा. सो हियर यू कैन सी दीज आर द कैरियर, these are the carriers, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. सो ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये हेल्प करेंगे टू प्रोड्यूस द एनर्जी. सो प्रीवियसली ऐसा जाना जाता था कि ये जो F1 पार्टिकल है इन्हीं में ही सारे एंजाइम्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नजर आता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नजर आता है, और एटीपी दैट इज फॉर्मेशन इज सीन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स ये F1 पार्टिकल्स के अंदर ही है, ऐसा पहले जाना जाता था. लेकिन अब पता चल चुका है दैट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन दीज आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट proteins which are helping in the formation of the ATP. और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं
ये हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लेकर आते हैं और फिर अब हाइड्रोजन जो वो है एटीपी सिंथेटेज द्वारा एक रोटर द्वारा मैट्रिक्स में लाया जाएगा और उसी दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होगा. Now we will talk about the matrix. Here, this is inside the inner membrane, एक gel like मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो कि काफी ज्यादा विस्कस होता है अगर साइटोप्लाज्म से कंपेयर करें तो. सो इट कंटेन्स लेस वाटर, इसलिए ज्यादा विस्कस है साइटोप्लाज्म से अगर कंपेयर करें तो. यही मैट्रिक्स में जो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी लाइक डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, क्रिस्टल्स, ग्रैन्यूल्स और एंजाइम्स, ऑल दीज आर इन्वॉल्व, जो कि सेल्यूलर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा काम करते हैं. और इसी में ही बैक्टीरिया की ही तरह राइबोसोम 70S मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड एज माइटो राइबोसोम. क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट वाज आल्सो सर्वाइविंग लाइक दैट ऑफ द बैक्टीरिया. जैसे बैक्टीरिया इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत पहले इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता था. लेकिन किसी यूकैरियोटिक सेल ने जब से माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ कर लिया है, तब से अब माइटोकॉन्ड्रिया इट इज लिविंग इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल. तो फायदा दोनों को ही है. सेल को जो है एटीपी का सिंथेसिस मिल जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल द्वारा ग्लूकोज मिल जाता है, दैट इज फूड मिल जाता है. सो दोनों को बेनिफिट होने के कारण दोनों के दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इट लिव्स इनसाइड द सेल. सो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट है जैसे बैक्टीरिया में है. लेकिन सेल के साइटोप्लाज्म में आपको हमेशा 80S टाइप का ही राइबोसोम नजर आएगा. सेल के साइटोप्लाज्म में आपको 80S टाइप का राइबोसोम मिलेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है आपको 70S टाइप का राइबोसोम ही मिलेगा. और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत पहले बहुत ही पुराने जमाने में वो भी बैक्टीरिया के ही तरह इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता था, इसीलिए उनके पास सेम बैक्टीरिया की तरह उन खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है. सो यू कैन सी द माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, इट इज प्रोकैरियोटिक, सर्कुलर एंड इट शॉर्ट. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और हम प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज बैक्टीरिया के डीएनए को भी हम न्यूक्लियोइड ही बोलते हैं, क्योंकि दोनों का डीएनए सेम ही है. Here when we talk about the mitochondrial matrix, इस मैट्रिक्स में जो है बहुत ही सारे रिएक्शंस देखने मिलते हैं, जैसे एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल which is involved in the energy production. Here you can see here there is an important step seen in the cellular respiration which produces the adenosine triphosphate. So cellular respiration में होता क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन का तो यूज किया ही जाएगा, ग्लूकोज का भी यूज किया जाएगा, एंड देन here as the oxidation of glucose will takes place there is the formation of ATP. और ये एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखने मिलेगी. और माइटोकॉन्ड्रिया it also reproduces on its own because they are having their own DNA apart from the host cell cycle. Here you can see mitochondria जो है, जो भी आयंस हैं उनको मेंटेन करके रखता है. आयनिक बैलेंस मेंटेन हमेशा किए जाते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया. और इनर चेम्बर इट इज फिल्ड विद द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स which is same like that of the stroma which is present in the chloroplast. Here we will talk about some of the functions of mitochondria. सबसे पहले function हम पढ़ेंगे cellular respiration. Here the mitochondria it is called respiratory center of cell. ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो कि एनर्जी करेंसी दैट इज एटीपी फॉर्म करता है. ओके ये कैसे करता है, बाय द रेस्पिरेशन, बाय यूजिंग द ग्लूकोज एंड बाय यूजिंग द ऑक्सीजन. और इस तरीके से सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म जो है वो देखने मिलता है. Here when we talk about the citric acid cycle or you can say the Krebs cycle, ये जो रिएक्शन है हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखने मिलेगी जो कि एनर्जी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. तो इस तरीके से जो है ग्लूकोज का कंप्लीट यूज किया जाएगा और उनके द्वारा ही ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन देखने मिलेगा. Here in the mitochondria cellular respiration जो है वो complete किया जाता है by the 4 steps, लेकिन in always in presence of oxygen, always in aerobic condition. तो substrate क्या चाहिए, substrate चाहिए glucose, substrate चाहिए glucose. और फिर here कुछ mitochondrial enzymes का use चाहिए, तभी here there is formation of the carbon dioxide and water. लेकिन यहाँ पर start किया जाता है by first reaction is glycolysis जो ATP का formation करेगा.
फिर देखने मिलेगा क्रेब्स साइकिल, वो भी एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। एंड हियर यू कैन सी द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हियर इसके द्वारा भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, देन पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन देखने मिलेगा यहाँ पर बीच में, फिर क्रेब्स साइकिल है, देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। ऑल दीज प्रोसेसेस हियर दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में देखने मिलेगी, और क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखने मिलेगी। सो ये सारे रिएक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हियर। लेकिन ज्यादा एनर्जी आपको कहाँ दिख रहा है, ज्यादा एनर्जी जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में देखने मिलती है। सो इसीलिए हियर माइटोकॉन्ड्रिया दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द एटीपी फॉर्मेशन। सो ग्लूकोज का यूज किया जाता है, और ग्लूकोज का यूज करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो रिलीज होगा है, उसके साथ साथ एनर्जी का रिलीज होते हुए नजर आएगा। Now the next function is heat production, which is called as thermogenesis. Here कुछ mammals जो होते हैं और कुछ hibernating species, उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है, हाई बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ द ब्राउन फैट। ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जो है कम ठंडी लगती है, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में जो है ब्राउन फैट ज्यादा होता है। ओके, हीट प्रोडक्शन ज्यादा होती है। सो जो सेल्स हैं उनमें ब्राउन फैट क्यों होता है? क्योंकि उन सेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है, और ऐसी स्पीसीज में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैटालाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, और वो कम एटीपी प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन ज्यादा एनर्जी, दैट इज ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन शिवरिंग थर्मियोजेनेसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम एटी प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन वो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो दे are in always in high number in the brown fat, that is called as heat production or thermogenesis. Now the next function is biosynthetic or anabolic activities. Mitochondria, it is also involved in biosynthetic or anabolic functions. जैसे कि suppose ये हेम है, हेम जो है एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं हेम, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइटोक्रोम, हेम इट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मायोग्लोबिन, हेम it is required to form the hemoglobin. Here it begins with the mitochondrial reactions which is catalyzed by the enzyme delta or delta amino levulinic acid synthetase. So here this is how it is synthesis here taking place by the mitochondrial reaction. So जो synthesis हो रहा है हेम का, it is needed for cytochrome, myoglobin and hemoglobin. It begins with the mitochondrial reaction. So इनके formation के लिए mitochondria काम करता है। Even कुछ steroidal hormones हैं, जैसे कि अगर testosterone की बात करें, progesterone, estrogen, these are the steroidal hormone. ये कहाँ से बनते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ओके, सो इनको कैटेलाइज करने का, here this reaction को catalyze करना जो है it is done by the mitochondrial enzymes. अब बात करते हैं accumulation of calcium and phosphate. Mitochondria जो कि osteoblast cells में present हैं, they have huge amount of calcium and phosphate. So ये जो है they are involved in accumulation of calcium and phosphate, और here it looks like microcrystalline electrode dense and deposit may become visible. So here this is how the function of mitochondria, it is involved in storage of calcium and phosphate in the osteoblast cell. कुछ और भी हम functions पढ़ते हैं like mitochondria जो है it is also assumed that it is involved in the storage of yolk proteins. सो जो भी ओवम होता है, एग सेल होता है, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ द यॉक प्रोटीन, जो कि आगे जाके यॉक प्लेटलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। Now here you can see the role of mitochondria in the apoptosis. Here apoptosis है क्या? Apoptosis का मतलब है we are here the organs. Here you can see in the apoptosis there is a shaping of the organs during the organogenesis. So, जब भी कोई organ का formation होता है उसके पहले जो है here shaping किया जाता है organ का, तब जाके organ का formation होगा। So पहले जो है जो भी fingers होते हैं उनके बीच बीच में tissues होते हैं, आगे जाके उन tissues का जो है dead हो जाते हैं, apoptosis कर दिया जाता है, तब जाके एक particular perfect organ का formation होता है। सो इस तरीके से दे, apoptosis का मतलब है डेथ ऑफ द
the aged or abnormal cells. तो mitochondria it plays a very important role in activating the apoptosis ताकि एक perfect organ का formation हो सके, एक proper shape बन सके किसी भी organ का. Here in the tadpole of frog also the tail it is going to get removed because of apoptosis. तब जाके एक frog का formation होगा without tail. तो अपप्टोसिस जो है होता क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कुछ सर्टेन प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसके वजह से कैस्पेस एक्टिवेट होंगे और कैस्पेस जो है ये आगे जाके प्रोटीजेस के जैसे काम करेंगे जो कि अपप्टोसिस लेकर आएंगे. Next is storage of calcium ions. Here, next function है कि mitochondria they are also having an important role in the storage of the calcium. Calcium जो है वो biochemistry के हिसाब से और physiology के हिसाब से बहुत ही important है. Calcium it is involved in signal transduction pathway. कैल्शियम इज इन्वॉल्व इन द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन. एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करता है बाय रिलीजिंग द कैल्शियम. हियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इट इज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम. मैं काफी सारे एंजाइम्स, मेनी ऑफ द एंजाइम दे नीड कैल्शियम एज अ को फैक्टर. जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग में जो है काफी एंजाइम्स है जिन्हें कैल्शियम की जरूरत है जो कि एज अ को फैक्टर की तरह काम करेंगे. सो इस तरीके से जो है माइटोकॉन्ड्रिया topic it is going to end, and here the video also end. Thank you very much.